So I hope you guys are doing good, and this is me Arshi. Welcome to this another episode. और इस episode को लेके I think I got a lot of requests in my comment section. I'm Kashipur, I'm Kashipur, I'm Kashipur. Please make a video on it. And I thought कि I think this is the best way to make a video on it. एक स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं बता सकता कि वो कॉलेज कैसा है. एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू आई एम काशीपुर वाज अबाउट द एनालिटिक्स कोर्स आल्सो. जनरल को लेके भी क्वेश्चंस थे, तो हम वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे विद अंशुल. अंशुल, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So, hello ma'am, I am Anshul Kumar Singh from Mumbai, and I'm an architect basically. I have done my undergraduate in architecture from Mumbai only, and I have a 3 years work ex where I have taught as an architecture faculty also, and I have worked in construction projects. So my experience definitely teaches me to execute a project from start to end, but the need arises for something like MBA majorly happened because of the finances. You are doing something, but MBA is a generalized umbrella concept where you are taught many different things. So I worked there, I had industry experience, I got to know, but I lacked skills in terms of like how managers are making decisions or how basically people are on the upper executive levels. Undergraduation will definitely get you a job, but rising up to a manager level will require around 8 to 10 years. MBA definitely bridges that gap. So that happened. And my dad was also a manager, so he definitely pushed me that you should not limit yourself to being just a undergraduate, you should push yourself for being an MBA. So in there, I started doing preparations. So preparation happened after my 3rd year. The COVID reduced my salaries also, so that was one of the major motivations also. And in there, I decided like I have to work. I was working there, I can't leave the mat because I love teaching. So that connect was there, and I can't teach them in between because exams are also there. So I started preparing at night. So what used to happen, like I used to teach from 11 to 8, and then at night I used to sit from 9 to till morning 3 or 4. So the motivation was definitely there कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बेटर करना है, कहीं तक आगे तक जाना है. तो वो पुश की वजह से आई यूज्ड टू पुश माई सेल्फ. डिसिप्लिन इज डेफिनेटली समथिंग जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज आपको लगता है कि आप 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे एंड आपने अचीव कर लिया है. एंड कैट एक ऐसा एग्जाम है, इट वुड पुश यू डेफिनेटली. और आपको सब मार्क्स नहीं लाने, जैसे यूपीएससी में बोलते हैं 1800 मार्क्स का अगर पेपर है तो उतने मार्क्स नहीं लाने, 50% इज इनफ. कैट में भी उतना ही है. आप अपना एक्सपर्टीज बना लो, कहाँ कहाँ पे आपके मेजर पॉइंट्स है, आप कहाँ पे रेलेवेंसी कर सकते हो, एंड यू हैव टू जस्ट पुश योरसेल्फ. एक लिमिट तक पहुंच गए, उतना बहुत है. कभी भी जाते की तरफ पुश मत करना, बिकॉज आई हैव सीन पीपल गेटिंग अबव 100, 120, 150 एंड एग्जाम के दिन जाके 70, 60, 50. एंड आपको अगर पहुंचना है कोई लेवल पे तो उतना ही नहीं चाहिए, बस एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक ब्रिज करके रखिए. So now I'll ask questions which will be more about your life at IIM Kashipur, right? How was your journey from working to getting into IIM Kashipur? This, how was that whole journey? बहुत confusion होगा, बहुत सारे colleges होंगे, right? पहले CAT की preparation का stress होगा, then result आने के बाद colleges का stress होगा. तो how was that whole journey as a whole sum? मैम एग्जाम देने के बाद मुझे एक आइडिया तो क्लिक हो गया था कि आई हैव डन डिसेंट इनफ. मतलब जो मैं मॉक्स में करते आ रहा था, मुझे लगा कि हाँ एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा, एंड मुझे आइडिया भी था कि IIM क्रैक हो जाएगा, क्योंकि IIM जो है, IIM सिर्फ एग्जाम बेस्ड नहीं लेता है. सिलेक्शन जो है IIM का अगर आप देखोगे तो उसमें वर्क एक्स भी काउंट होता है, आपका जेंडर डाइवर्सिटी भी काउंट होता है, इवन आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी काउंट होता है. तो यहाँ पे मेरे लिए फायदा ये था कि मेरे पास वर्क एक्स था, प्लस मेरे पास, मैं आर्किटेक्ट हूँ तो एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, तो उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए. तो मुझे लगा कि IIM तो क्रैक हो जाएगा. तो एटलीस्ट जो वो फेज होता है ना जहाँ पे हम लोग एंग्जाइटी में बैठे रहते हैं, वो नहीं था मुझे, कि मतलब आइडिया था कि हाँ कुछ तो कर ही लिया है, मतलब हो जाएगा. अब यहाँ पे जैसे आया मैं, तो आर्किटेक्चर 5 साल में, आर्किटेक्चर अराउंड तो 18 से 23 का एज था, प्लस 3 इयर्स मेरा जॉब का था. तो यहाँ पे जो मैं बच्चों का पढ़ रहा हूँ, मैं शायद थोड़ा बड़ा हूँ उन सबसे, 26, 27 ये. और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये बीकॉम करके आए, एमकॉम करके आए हैं, तो इनका एज काफी कम है. तो ये फ्रेशर्स भी हैं ऊपर से, तो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव्स लाते हैं और हम इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स लाते हैं. तो IIM काशीपुर में ये सबसे अच्छा ब्लेंड है कि ना जेंडर रेशियो मेंटेन्ड है. उसके बाद में फिर है ना एकेडमिक डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा है. अराउंड 46% बच्चे इंजीनियर्स हैं, बाकी सब नॉन इंजीनियर्स हैं. तो आप जैसे अगर कोई प्रॉब्लम लेके बैठते हो कि आज मार्केटिंग में ये करना है, स्ट्रैटेजी में ये अप्लाई करना है, तो आपको बस एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, आपको बस फ्रेशर पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, आपको नॉन इंजीनियर पर्सपेक्टिव मिलता है. और जैसे कोई फार्मा का सॉल्यूशन आया तो कोई फार्मा का कुछ बैकग्राउंड रहेगा उसका, तो वो हेल्प करता है. कोई मैनेजर भी रह चुका है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो
पहले उन्होंने मैनेजर स्टार्ट कर दिया तो वो भी आए, तो उनका पर्सपेक्टिव आता है। उसके बाद में फिर है ना इंजीनियरिंग वाले एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस वाला जो चीज होती है उसमें हेल्प करता है। तो आप काफी ज्यादा सीख रहे हो एंड एक चेंज आता है स्टूडेंट में। जैसे पहले जो था, भले ही मैं टीचिंग करता था तो मतलब ऑब्वियसली हमें एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है कि आपका एक लेवल है, बट जैसे आप एमबीए कर रहे हो विद द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्रीज, तो एक डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है, आप में एक चेंज आता है कि हाँ हमारा कुछ लेवल है, हमको कुछ आगे यहाँ से एक लेगेसी को ऊपर लेके जाना है, तो वो काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे जैसे मतलब आईएम्स में होता ही है कि हमारे यहाँ कमिटीज हैं, क्लब्स हैं, तो व्हाट हैपेंस इज लाइक आप कमिटीज क्लब्स में जाते हो तो आपको है ना रियल लाइफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कॉलेज स्टूडेंट रन कैंपस है, एक हेड है जो डेफिनेटली सब चीजें देखते हैं। बट जैसे अगर मेस कमेटी ले लो तो मतलब मेस में जो फूड मेन्यू बनेगा या मतलब जो है ना उसका ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा, तो वो सब स्टूडेंट्स बैठ के निकालते हैं। तो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देख रहे हो और उसको आप अप्लाई कर रहे हो कि हाँ हमको ये कॉस्टिंग में इतना करना है, स्पेशल लंचेस करने हैं, कल्चरल कमेटी है कि हमको होली करवानी है या दिवाली करवानी है, वो भी इतने लिमिटेड बजट में और 700 बच्चों के लिए, तो आपका मतलब फाइनेंसेस अच्छा हो जाता है, आपका ऑपरेशंस अच्छा हो जाता है। आप इवन ये भी देख सकते हो कि डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में आप अप्लाई कर पा रहे हो। एंड IM टैग जब लग जाता है तो डेफिनेटली बाकी ब्रांड्स भी अपने आप आ जाते हैं। हमको लगा नहीं था कि है ना, मतलब जैसे हमारा एक इवेंट होता है अग्नित्रिया करके जो हमारा मेन फेस्ट है, तो स्पॉन्सर्स लगा नहीं था कि इतने आ जाएंगे। मतलब मल्टीपल स्पॉन्सर्स लाइन दे के पैसे लेके खड़े रहते हैं कि हमको बस कोलैब करना है आपके साथ में। तो जब आप ये देखते हो कि IM टैग लग गया आपके साथ में, प्लस ये स्पॉन्सर आते हैं डिमांड के साथ में, आप काफी ज्यादा सीख रहे हो। इवन अभी ये हो गया है कि ना IM काशीपुर इज वन ऑफ द फर्स्ट कैंपसेस इन इंडिया विच हैज ओथिस्टा। ओथिस्टा इज लाइक डॉन बोलते हैं, जो यहाँ पे ना हम लोग स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं, स्टार्टअप्स को ग्रो करने में। तो इस साल 100+ स्टार्टअप्स आए थे यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि आपका इंडस्ट्री कनेक्ट भी हो जाता है एंड एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग सब्जेक्ट भी है जहाँ पे आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम सीख के वहाँ अप्लाई भी करते हो। हम लोग की कंपलसरी कोर्स है ये, सिर्फ जो ओल्ड IIMs है उनमें अप्लाई होता है, और ये यहाँ पे भी कंपलसरी कोर्स है जिसमें हम लोग डेडिकेटली कंपनियां जाते हैं, हम वहाँ हफ्ते 10 दिन 15 दिन रहेंगे, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एंड उनके ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो आप इंडस्ट्री के पहले ही आप एक काम कर रहे हो। एंड इवन जैसे मुझे अभी जो पसंद है, मुझे मार्केटिंग पसंद है, तो यहाँ पे लाइफ प्रोजेक्ट्स करके आता है। तो ये 2 महीने 3 महीने के लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे वो ये आपको है ना बोल देंगे। वो मतलब कैसा रहता है कि वो पैसे नहीं देते, मतलब पैसे दे देते हैं थोड़े बहुत, बट उनका आइडिया वही होता है कि ना आप IM ग्रेड हो, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ ना कुछ कर दोगे। तो ये आपको दूसरों से है ना आगे पुश करता है कि मतलब मैं भी ऑब्वियसली इनके जैसे ही था, बट मेरे पीछे जो टैग है, मेरे पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से मुझे अब आगे और बेहतर ही बनना है। यहाँ पे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं, और मतलब वो मेरे CV में भी ऐड होता है और डेफिनेटली एक डिफरेंट लुक देता है हमें इसमें। तो उस मामले में जर्नी मतलब काफी डिफरेंट रही इंस्टेड ऑफ लाइक नॉर्मल बी स्कूल्स। एंड इवन केसेस का लेवल्स भी देखो तो IIMs में एक लेवल फॉलो होता है, जैसे ना हार्वर्ड केसेस हैं, आईवी लीग केसेस हैं, तो दीज आर लाइक बेस्ट बी स्कूल्स के केसेस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका वो लेवल ऑफ थिंकिंग अपने आप काफी ऊपर उठ चुका है, तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें इसमें। Okay. So I have this one more question, which is basically that you talked your complete life at IIM Kashipur, the pros की क्या exactly आपको मिलता है। पर एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में होता है इज बेसिकली द सिलेक्शन क्राइटेरिया, जहाँ तो आपने थोड़ा सा इलाबोरेट तो कर दिया है दैट दे लुक फॉर डाइवर्सिटी, वो एकेडमिक्स को भी वेटेज देते हैं। पर अगर हम इन शॉर्ट बात करें कि कैट में, आई मीन व्हाट वाज योर कैट परसेंटाइल जिस पे आपको कॉल आया था, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, और वहां पे क्या चैलेंजेस होते हैं, स्टूडेंट अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अब दे आर टारगेटिंग स्पेसिफिकली IIM काशी। मैम लाइक हमारा जो कॉलेज है इट कम्स अंडर कैप, कॉमन एडमिशन प्रोसेस कैप करके, तो उसमें ना 11 IIMs कोलैब करते हैं एंड देन उनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि ना हमारा 92 परसेंटाइल था ओवरऑल एंड सेक्शनल कट ऑफ वाज 70-70-70। I got 95.84 percentile, which is a good enough number, and 92 above हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें दूसरा एनालिटिक्स जैसे है, एनालिटिक्स में ना आपका प्रोफाइल भी देखा जाता है। तो IIM में जैसे मैंने पहले भी थोड़ा एलाबोरेट किया कि आप अगर आ रहे हो तो आप ना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एग्जाम क्रैक करके आपने एक लेवल अचीव कर लिया, एग्जाम के साथ साथ आपने अगर वर्कएक्स है, सबसे प्राइम जो मतलब जो बोलते हैं ना एडवांटेज इसको रहता है, जिनका वर्क है ना 1.5 ईयर से लेके 3 इयर्स तक का है, उनको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी ऑब्वियसली हेल्प्स, एकेडमिक डाइवर्सिटी है तो उसमें और हेल्प हो जाता है। तो बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा स्ट्रेटेजी उनके लिए यही है कि एटलीस्ट 92 तो आपका मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे आपको कॉल आएगा नहीं। और ये गलती मत करना कि एक भी इसको छोड़ देना, मतलब सब्जेक्ट को,
क्योंकि मेरा एक सब्जेक्टिव और 70% आएंगे। मेरा एक और क्वेश्चन है, यू मेंशन कि कैप की काउंसलिंग होती है जहाँ पे जितने भी आईएम्स जो एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो यस उसमें मैम। आप एक सिंगल विंडो के थ्रू ये सभी आईएम्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो यूजुअली हाँ क्या होता है कि लेट्स से लाइक वाइज यू मेंशन दैट यू गॉट 95 परसेंटाइल इन कैट, सो यू रिसीव कॉल फ्रॉम ऑल दोज आईएम्स और यू गॉट कॉल्स फ्रॉम फ्यू आईएम्स आफ्टर दैट? मैम, आई से लाइक ऑल आईएम्स से ऑल, आ गया था। ठीक है। ऑल मतलब नॉट ऑब्वियसली द टॉप मंथ्स, टॉप मंथ्स का कट ऑफ थोड़ा और ऊपर और है। ज्यादा अग्रीड अग्रीड। और ज्यादा डेफिनेटली आता है, बट जो कैप में जितने हैं सबका कॉल आ गया था। तो सबके लिए आपने एंड इंडिविजुअली इंटरव्यू दिया था? नहीं, इंटरव्यू एक ही होता है। एक ही होता है। तो उसके बाद में फिर कैसा है कि कुछ आईएम्स है ना थोड़े हट गए, जैसे रोहतक है, आईएम रोहतक है, अमृतसर है, विशाखापट्टनम है, ये कैप में नहीं आते हैं, इन्होंने ये अपना खुद का पीआई करवाते हैं। पर जो कैप के अंडर जितने आईएम्स हैं उन सबका एक ही इंटरव्यू होता है। एंड आपको वो आपने क्लियर कर लिया तो आप डेफिनेटली इन सब के लिए एलिजिबल, मतलब हर फिर बदलते रहता है, हर आईएम के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो वो अंडरस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पे थोड़ा वर्क और इसके लिए ज्यादा अच्छा है एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए। कुछ आईएम्स के लिए है ना इवन सब्जेक्ट वाइज भी होता है कि आपका है ना मैथ्स का स्कोर अच्छा है या इंग्लिश का स्कोर अच्छा है तो आपको 0.4 ग्रेड में करते हैं, और बाकी इसको 0.3 करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग होती है, तो सबका अपने हिसाब से रहता है। ठीक है। पर कॉल आपको 8 का एक साथ आ जाएगा। एंड कॉल आने के बाद का जो आप इंटरव्यू, इट्स बेसिकली बैट एंड इंटरव्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम सिर्फ इंटरव्यू हुआ था मेरा डायरेक्टली, मैं और आपको 2021 में सिर्फ किया interview। था, तो सिर्फ इंटरव्यू था हमारे इसमें। So, Amin, I also want to ask this question. I mean, I think we have quite, talked about it कि आपको 92 प्लस परसेंटाइल पे सारे आईएम्स से जो न्यू हैं, जो कैप में आते कैप वाले हैं, यस। राइट? देन यू हैव दिस हाँ इंटरव्यू, और इंटरव्यू में बेसिकली देखा जाता है दैट आपका अकेडमिक, आपके रीजन व्हाई यू आर कमिंग फॉर एमबीए एंड ऑल दीस थिंग्स। नाउ यस। गेट इनटू द कॉलेज, आपका सिलेक्शन हो गया है, क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में और भी होता है, लेट्स से यू कन्वर्टेड आईएम काशीपुर, यू कन्वर्टेड सम अदर बी स्कूल्स, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपका परसेंटाइल अच्छा है, तो यस आपके पास जो कॉलेजेस दूसरे भी होंगे वो भी कहीं ना कहीं देयर इज लाइक 19-20, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर आपको क्या कहना है? मैम, जैसे है ना आईएम्स बने थे इंडिया में तो ओल्डर आईएम्स डेफिनेटली एक लेगेसी फॉलो करते हैं, बट जैसे ये जो न्यू आईएम्स हैं ये 2010 के बाद में है। तो यहाँ पे जो सीनियर्स हैं हमारे जो एलम्स हैं वो अभी एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे वो सीईओस वगैरह बनेंगे या मतलब कुछ कुछ बन रहे हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपको ना एलुमनाई बेस का देखना चाहिए, और न्यू आईएम सब एक एट पारी लेवल है। यहाँ पे डिफरेंस कैसे आता है, जैसे आईएम काशीपुर का है, आईएम काशीपुर एनालिटिक्स भी ऑफर करता है, तो हम लोग ने ये अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, जैसे आप आजकल देख रहे हो इवन चैट जीपीटी है या एआई जो है, एंड जो ये छोटे मोटे जॉब्स हैं, कंटेंट राइटिंग है, मतलब ये ईमेल्स के या ये सब जो जॉब्स हैं ये जाने वाले हैं, और मतलब फ्यूचर में भी यही बोला जाता है कि ना 60-70% जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ना कौन से आईएम्स आपको ऐसे स्किल्स दे रहे हैं जो फ्यूचर रेडी करवाएंगे। प्लेसमेंट पे मत जाओ, कोर्सेज देखो कि आप क्या सीखने वाले हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आईएम काशीपुर का डेफिनेटली एज आया कि जहाँ पे ना हम लोग एनालिटिक्स के सब्जेक्ट्स भी सिखा रहे हैं बच्चों को, प्लस एमबीए कोर के सब्जेक्ट, तो एक प्रॉपर ब्लेंड है जो है ना फ्यूचर रेडी स्किल्स दे रहा है हम लोग, ना कि हम लोग सिर्फ एक डोमेन में जाके अटक जा रहे। तो वो अंडरस्टैंडिंग था। ऑब्वियसली क्लियरेंस के मामले में मतलब बाकी आईएम्स भी हैं जिनका मतलब क्लियर हुआ था, कुछ का नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ना कुछ इंटरव्यू बेस होता है, कुछ आपके ग्रेडिंग और सेक्शनल मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ का कट ऑफ लाइक 20 से रह गया, कुछ का कट ऑफ 150 से रह गया, तो मतलब वो भी रहता है फैक्टर। बट मेरे हिसाब से तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कौन सा आईएम फ्यूचर रेडी कर रहा है। अगर आप वो देख के कर रहे हो, क्योंकि प्लेसमेंट जैसे 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, पैसे के पीछे मत भागो, एक्सपीरियंस या मतलब बेसिकली एजुकेशन के पीछे भागो। तो वही है कि आप स्किल्स क्या लेके जा रहे हो, क्योंकि आपको फील्ड में स्किल्स मैटर करेगा। आपका पैसा इज सेकेंडरी, स्किल्स पे ही सब बात होता है। तो वो आप देख लो, उसके हिसाब से आप देख सकते हो मतलब कहाँ पे आप ज्यादा बेटर करोगे। क्योंकि जैसे जो न्यू बेबी आईएम्स हैं वो लोग भी मतलब ला रहे हैं डेफिनेट मतलब कोर्सेज ला रहे हैं, तो सिर्फ टैग आपको एक पुश देगा कि मतलब आपके पास ये आईएम टैग है, बट आपने वहां से जो सीखा है वो अप्लाई हो रहा है रियल लाइफ में। क्योंकि एक्सेल है, एक्सेल सबको ही आता है, या मतलब आजकल टैबलो है, पावर बीआई है, तो दीज आर समथिंग जो सब यूज नहीं कर रहे हैं बट टॉप फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको आना चाहिए। तो ये कोर्सेज आपके कॉलेज में सिखा रहे हैं क्या, आपको वो लेवल तक पुश कर रहे हैं क्या? अगर वो आप कर लोगे तो डेफिनेटली एक आईएम क्वेश्चन मेरे लिए तो मतलब वो अंडरस्टैंडिंग में था कि मतलब हाँ यहाँ पे मैं कुछ बेटर सीख के जा रहा हूँ। So one last section of questions that comes to the picture, that is placements, right? एक बहुत prior decision होता है जब student curriculum के साथ साथ देखता है कि मुझे मिलेगा क्या end of the day.
So I mean, I think like we were discussing अभी 2023 की reports नहीं है, but in general, I mean, if you can give idea to the students, and you also mention, you know, because a lot of students ask this question कि जो analytics course है वो नया है तो हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या उसके placements जो है वो same रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इस पे what do you want to say? मैम प्लेसमेंट्स का जैसे मैंने बताया कि इस साल का प्लेसमेंट हमारा जनवरी एंड तक खत्म हो गया था, एंड वी वर वन ऑफ द फ्यू आईएम्स जिनका बाकी न्यू आईएम से पहले हो गया, एंड बाकी न्यू आईएम्स का हमारे बाद में हुआ, तो हमारा मतलब प्लेसमेंट फाइनल प्लेसमेंट हो चुका है, बस रिपोर्ट आना बाकी। बट जैसे आप बैच साइज देखोगे 325 बैच साइज वाज इन द प्रीवियस ईयर, एंड दिस ईयर वी आर अराउंड 340 समथिंग ऐसे, एंड द नंबर इज गोइंग टू राइज, बट द एवरेज प्लेसमेंट्स हियर इज बेसिकली वी हैव अचीव्ड एन एवरेज ऑफ 15.82, so that is LPA, and the median is 14.8, so that is a good number. And for like 322 students or 340 students, if 150 of them are getting above this number, basically like the top 30 percentile is about 21 lakhs, so we have achieved that, and in 330 top 30 percentile is around 90 to 100 students are getting about 21 lakhs. That is quite a good number, and the highest packages go around 28 lakhs to 30 lakhs. This year I have heard like we have achieved 36, and one of my seniors got about 36 lakhs, so the number is good. For analytics side से analytics उनको definitely लेना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि core competency तो है, but आपको इन दी एंड जाके ऑफिस में काम करना है, फील्ड पे भी करोगे आप, बट आपको जो है ना ऑफिस का अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, तो उसके लिए एनालिटिक्स डेफिनेटली हेल्प्स। एनालिटिक्स का काम ज्यादातर आप देखोगे एमबीए कोर से ये रहता है कि इट एनालाइजेस के ना वेयर वी आर लैगिंग। एमबीए कोर में आप सीखते हो कि एग्जीक्यूशन में कैसा है, एनालिटिक्स में आप ये ज्यादा सीख लेते हो कि मतलब कहाँ पे स्मॉल स्मॉल गैप्स हैं, तो वो एक ऐसा स्किल है जो फ्यूचर रेलेवेंट है, एंड उसके प्लेसमेंट्स भी काफी है, मतलब जैसे आप देखोगे जो मतलब एट पार ही है, हमारा प्लेसमेंट्स भी अम्ब्रेला प्लेसमेंट ही है कि अब सब साथ में ही होता है, एंड वी आर मैचिंग, मतलब कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दे कैन डेफिनेटली टेक एनालिटिक्स, एंड एक एडवांटेज भी रहता है कभी कभी कि आप मतलब बेटर आईटी स्किल्स लेके आ रहे हो, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली परस्यू एनालिटिक्स आल्सो। Okay, so I think I'm done with my question. Anshul, any last suggestion what to give to the aspirants or to the audience who are watching this video? My last suggestion would be कि don't be too hard on yourself. कभी कभी कैसा होता है कि आप ना देख के जल जाते हो कि मतलब है ना इसने ये कर लिया मेरा नहीं है, या कभी कभी आपको लगेगा कि मतलब ये आप जहाँ तक पहुंचे हो बस यही है कि गिव 100%, बाकी तो मतलब ईश्वर है ही जो देख के मतलब कर लेंगे, नहीं तो फिर मतलब बाकी योर प्रिपरेशन मैटर्स, एंड सिंपल थिंग इज बी कंसिस्टेंट। जैसे मैंने बताया कि व्हाइल प्रिपेयरिंग आई मार्क्ड 123 डेज एंड देन अचानक देखा तो 50-60 डेज बाकी हैं, तो वो गलती मत करना कि आप बिल्कुल भूल ही जाओ कि बहुत टाइम बचा है, एंड फिर सोच के देखोगे कुछ टाइम नहीं बचा है। मॉक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एंड एक सिंपल रूल जो मैं करता था कि गलतियां लिख के भूलना नहीं है, गलतियां लिख के उनको उधर ही सुधारो ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करो। एंड एक रूल है 0.1% इंप्रूवमेंट रूल, आप कल से आज कितने बेटर हो बस वो अप्लाई किया तो आप काफी अचीव कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच अंशु फॉर योर टाइम, यू नो, थैंक यू सो मच।